Hare Krishna. So today is 14th May 2026, Thursday. As for Indian month, it is just a month. And Tithi is Krishna Dwadasi, Krishna Paksha Dwadasi. So many will be not familiar with these terms. आधुनिक समय खाली मई, जून, जुलाई लोग जानते हैं. हमारे जो भारतीय मंथ है इस प्रकार से हैं. तो आज पवित्र तिथि है. Not only this is a special day, also today is the divine appearance of Srila Vrindavan Das Thakur, the great Vaishnava. So I have shared a song. So please open it up by Vrindavan Das Thakur. I have shared a song. Yeah. So this is a very beautiful song glorifying Lord Chaitanya's beauty. So he's playing Mridanga. Wow. So it's noise, eh? Sweet noise, eh? So he's playing Mridanga? Yeah, you are here. Okay. Janulambita babu jugala kanakaputali deha. Janulambita babu jugala kanakaputali deha. Arunambara Sobhita Kalevara, Arunambara Sobhita Kalevara, Upamade Avakara, Upamade Avakara. Hasabhimala Bhayankamala Pina Hridaya Saje. Hasabhimala Bhayankamala Pina Hridaya Saje. Unnatagima Simhajiniya, Unnatagima Simhajiniya, Udara Vikraraje, Udara Vikraraje. Janulambita babu jugala kanakaputali deha. Janulambita babu jugala kanakaputali deha. Arunambara Sobhita Kalevara, Arunambara Sobhita Kalevara, Upamade Avakara, Upamade Avakara. Charana Nakhara Ujara Sasadhara Kanaya Mandari Soye. Charana Nakhara Ujara Sasadhara Kanaya Mandari Soye. Heri dinamani apnani chahe, Heri dinamani apnani chahe, Rupe jagamana mohe, Rupe jagamana mohe. Janulambita babu jugala kanakaputali deha. Janulambita babu jugala kanakaputali deha. Arunambara Sobhita Kalevara, Arunambara Sobhita Kalevara, Upamade Avakara, Upamade Avakara. Kaliyuga avatar Chaitanya Nitai, Papa Pasandarai Mane. Kaliyuga avatar Chaitanya Nitai, Papa Pasandarai Mane.
श्री कृष्ण चैतन्य ठाकुर नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य ठाकुर नित्यानंद, वृंदावन दास गुना गाने, वृंदावन दास गुना गाने, जानुलंबितवारुजुगल कनक भूतले देहा, जानुलंबित अरुणांबर सवित कलेवरा, उपमदे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय जय पंचतत्व पंचतत्व पंचतत्व, जय पंचतत्व, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। श्रीराम संकीर्तन की जय, गौर नित्यानंद की जय, पंचतत्व की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद देव। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीसखान्वितं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णाय तदालय। Hare Krishna. So welcome all of you. Few of the devotees I'm meeting first time. Who are all the new faces? I know the last row. Yeah, you're first time. Huh? You are also. Okay. The bright faces, glowing like anything. So you're in which college you are also studying in? ARST. How many are ARST? Okay. Majority is ARST. Atma Ram Sanatana. It's like Sanatana is glowing there. And Atma Ram Sanatana. Yeah, good.
So nice, you are at such a young age taking inspiration to take up this devotional service. That means you have really got the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. जब तक कोई चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त नहीं करता है, इस महान आंदोलन में जुड़ नहीं पाता है। संसार में कितने लोग हैं जो मुश्किलात में हैं, लेकिन सही स्रोत से जुड़ नहीं पाते हैं। और जो सौभाग्य उदय होता है, कोई इस महान आंदोलन से जुड़ता है। तो चैतन्य महाप्रभु थे, जो चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले उनके पार्षदगण अलग अलग स्थान में प्रकट हो गए थे। जैसे भगवान कृष्ण आने से पहले उनके नित्य परिकर आ जाते हैं, तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के परिकरगण भी पहले अलग अलग स्थान में आ गए थे। और जैसे महाप्रभु आए और महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन प्रवर्तन किए, तो तुरंत सभी भक्त लोग जिस जिस स्थान में थे आकर एक जगह सम्मिलित होने लगे महाप्रभु के संकीर्तन में। तो इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद ही जो महाप्रभु के सेनापति भक्त हैं। So Prabhupada is known as the commander in chief to propagate this Krishna consciousness. Empowered. He is known as Satyavesa Avatara. Satyavesa means with the Shakti, the spiritual potency, the internal potency is injected in specially living being. He acts like a Satyavesa Avatara for propagating the mission of Lord Chaitanya, Lord's mission. तो श्रील प्रभुपाद भी इस प्रकार जब इस आंदोलन को प्रवर्तन किए, तो विश्व भर में इससे अनेक गौर पार्षद गौर भक्तगण थे, और पुनः प्रभुपाद की कृपा से ये सब पुनः प्रकट हुए और संकीर्तन में भाग लिए। So this is all about the science, how Bhakti Yoga works, how the devotee get connected to the process. And today is the divine appearance of Srila Vrindavan Das Thakur. How many of you know hard name of Vrindavan Das Thakur? कितने लोग वृंदावन दास ठाकुर के नाम सुने हैं? Many of you are not familiar with. So he was a great Vaishnava. And when you hear the glories and life of Vaishnava, their contribution to the creations, we develop enthusiasm in serving, rendering devotional service. ऐसे महान भक्तों के चरित्र जीवन जब सुनते हैं, तो पता नहीं ये भक्ति विज्ञान कैसे कार्य करता है कि हमारे अंदर ऊर्जा संचारित होता है भगवान की सेवा के लिए। भक्ति भक्तों की महिमा या भक्तों की कृपा से ही चलता है, और किसी ना किसी प्रकार से कोई भक्त को थोड़ा सा भी हम सेवा कर दे, जाने हो अनजाने में हो, ये भक्ति को तीव्रता से आगे ले जाता है। सो टुडे इज अपॉर्चुनिटी टू ड्रैग दिस मर्सी एक्चुअली। In a year, so many Vaishnava Tithis come, and opportunity to pray or beg the mercy of these great Vaishnavas. क्योंकि भक्ति जो है कृपा के मार्ग है, और इन महान वैष्णव की कृपा के बिना हम भक्ति कर नहीं पाएंगे एक्चुअली। तो हमारी अगर भक्ति की नैया चल रहा है, कहीं ना कहीं कृपा हमारे जीवन में संचारित है। It's not by our own potency, own intelligence, because there are three categories of devotees, three category of jiva. What are the three category? One is nityabadha, eternally conditioned. Second is nityasiddha, he is liberated, eternally liberated. The third category is kripa siddha. One way you can say sadhana siddha also. The third category is kripa siddha. So kripa siddha is like not only through sadhana is also included, by the mercy of another Vaishnava, he attained perfection, like it's kripa siddha. तो कलयुग में हम सबके अंदर साधना के भी उतने बल नहीं है, हमारी साधना जो है कृपा पर ही चल रही है। कृपा संचारित होती है और साधना हम कर पाते हैं। इसलिए बहुत बड़े साधन सिद्ध सब यहाँ अभी हैं, ऐसे नहीं है कलयुग में। तो कहीं ना कहीं साधु गुरुजनों की कृपा संचारित हो रहा है, इसलिए हमें साधना का बल मिल रहा है, जैसे तैसे हमारी कार्य हो जाती है। तो नेवर टेक क्रेडिट that by my intelligence, by my potency I am doing sadhana. No, it's by their mercy only we are able to perform sadhana.
तो हर अवसर हमें इन महान वैष्णव की कृपा याचना करना और कृपा भिक्षा करने के अवसर मिलता है, मुख्य रूप से उनके विशेष तिथि पर। तो इसलिए आज श्री वृंदावन दास ठाकुर जो महान वैष्णव है, जिस प्रकार व्यासदेव जी श्रीमद् भागवतम की महिमा वर्णन की, आप में से भागवतम कुछ भक्त पढ़ने लगे होंगे, कुछ लोग भागवतम के नाम भी सुने होंगे। So what is Bhagavatam? Who can like define what is Bhagavatam in proper words? Bhagavatam क्या है? कुल एक ग्रंथ है, और क्या है? What is Bhagavatam? In transcendental words, what is Bhagavatam? How to like elaborate about Bhagavatam? Literal incarnation of Krishna, okay? और Bhagavatam is literary incarnation, और essence of all Vedic knowledge is Bhagavatam। और बताइए, कुछ भक्त भागवतम से परिचित नहीं है, तो सार सिंपली लाइक सार रूप में अगर बताने लगे, सो भक्तियों का आस्वादन करने की ग्रंथ है, क्या है? भागवतम। भागवतम इज अ ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर व्हिच हेल्प अस रिलीजिंग भक्ति। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। सो यू हैव पावरफुल पोटेंसी ऑफ विचार शक्ति, विचार करने की शक्ति। दुनिया में सही गलत के विचार होने की शक्ति प्राप्त होता है भक्ति के बल से। तो आप जब भक्ति विज्ञान को विचार करने लगेंगे और भक्ति रस को आस्वादन करेंगे, तो कौन सी ग्रंथ सहायक बनेगा? भागवतम बनेगा। तो simple words, Prabhupada give one definition in one of his work, but like Bhagavatam is a science dealing with the loving relation of devotee with Lord. Bhagavatam is a science dealing with the devotee exchanges with the Lord. This is Bhagavatam. So this is transcendental topic. The answer can be in many form, not in one form. ये दिव्य साहित्य है। भौतिक जगत में हर चीज का आंसर एक ही उपाय होता है, लेकिन आध्यात्मिक धरातल पर एक ही विषय का अनेक प्रकार के। तो भौतिक जगत में कोई सेवा करना के एक ही तरीका होता है। हमारी बुद्धि भी ऐसे ही होता है। कभी हम कुछ सेवा करते हैं तो मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, isn't it? But a service can be rendered in n number of ways, isn't it? अलग अलग भक्त अलग अलग प्रकार से सेवा कर सकता है, but we should not be rendering service on whimsical nature in an authentic way. Under proper guidance, the service should be rendered. तो भौतिक धरातल पे हर चीज की एक ही कार्य, एक ही one way only, but in transcendental world, service can be rendered in n number of ways. तो ये इसलिए वृंदावन दास ठाकुर के परिचय, वृंदावन दास ठाकुर है कौन? तो चैतन्य महाप्रभु के जैसे अवतार नहीं है, इज नॉट लाइक इनकारनेशंस, बट स्टिल इज समटाइम काउंटेड एज अवतार। Who descends? अवतार मीन्स who descends। तो भगवान के अनेक अवतार हुआ, लेकिन ऐसे अवतार कभी नहीं हुआ जो महाप्रभु किए। क्यों? Why is it so? There are many incarnations of Lord, Nrsimha, Varaha, Vamana, Hayagriva, many incarnations. But what is the speciality of Lord Chaitanya's incarnation? Lord Chaitanya is coming over. क्या खास हुए थे महाप्रभु की अवतार के? Yeah, which never happened in the सृष्टि में कभी नहीं हुआ कि सबसे तो दुर्लभ वस्तु प्रदान करने वाले वही भगवत प्रेम। हाँ, और महाप्रभु जब इस भगवत प्रेम को वितरण किए, वो किसी को जज नहीं किए। भगवान कृष्ण जब भगवत गीता के संदेश दिए तो भगवान कृष्ण कई प्रकार के शर्त रखे, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। तो गीता के उपदेशों को भी लोग समझ नहीं पाए थे, लेकिन गीता के उपदेश क्या है और आस्वादनीय है, ये बताने कौन आए? चैतन्य महाप्रभु आए।
तो दैट्स व्हाई लॉर्ड चैतन्य इनकारनेशन इज वेरी रेयर, दुर्लभ है एक्चुअली। इसलिए एक आचार्य कहते हैं अवतार सार गोरा अवतार, सभी अवतारों के सार है, निचोड़ है, निष्कर्ष है, सार है, एसेंस इज लॉर्ड चैतन्य। तो चैतन्य महाप्रभु, आप सब जैसे भारतीयवासी जैसे इतिहास पढ़ते हैं तो चैतन्य महाप्रभु लोग एक साधु पुरुष मानते हैं, सेंटली पर्सन। वेरी रेयर पीपल नो दैट लॉर्ड चैतन्य इज लॉर्ड हिमसेल्फ, है ना। तो अनलेस दिस साइंस इज नॉट अंडरस्टूड, फर्दर स्पिरिचुअल टॉपिक विल नॉट बी अंडरस्टूड फर्दर। लाइक ये विज्ञान को पहले समझना होगा कि चैतन्य महाप्रभु कैसे परम भगवान है। तो इनिशियली एटलीस्ट इस पे have put faith how Lord Chaitanya is Lord himself, to understand, to realize his great thing, like by his mercy only, Lord Chaitanya's mercy। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वास्तविक भागवतम, चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथ को एक्सेस मिलता है हमें, अन्यथा इट कैन नॉट अंडरस्टैंड, वेरी डिफिकल्ट। आप जैसे देखेंगे विश्व भर में अनेक लोग भगवत गीता, भागवतम आदि पढ़ते हैं, लेकिन अपने तरीके से पढ़ते हैं, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु आए, इन ग्रंथों की आस्वादन हुआ, क्योंकि इसकी जो सार है, भक्ति है, ये कौन दिए बोले? चैतन्य महाप्रभु बोले। आप देखिए विश्व भर में भगवत गीता बहुत लोग पढ़ते हैं, वी आर फिलोसोफर्स, द साइंटिस्ट, द पॉलिटिशियंस, द इकोनॉमिस्ट, द टीचर्स, so many are studying Bhagavad Gita, but the hidden fact is not uncovered unless one comes in touch with devotee like Lord Chaitanya and his descendants। भगवत गीता के रहस्य तब तक रहस्यमय रहता है जब तक कोई वास्तविक महाप्रभु के ऐसे पार्षदों के संग लाभ नहीं करता है। तो इसलिए जो महान भगवान के अवतार है चैतन्य महाप्रभु, जो भक्त रूप में आए थे, जिस प्रकार व्यासदेव जी भगवान कृष्ण की महिमा को विस्तार किए भागवतम में, तो ही व्यासदेव जी के अवतार रूप में श्री वृंदावन दास ठाकुर आए। श्री वृंदावन दास ठाकुर इज नॉट ए ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, ही इज व्यासदेव हिमसेल्फ। आप में से कुछ भक्त गए हैं बद्रीनाथ? एनीवन हैज बीन टू बद्रीनाथ? यू हैव सीन व्यास गुफा, व्यासदेव? अच्छा, कितने लोग व्यासदेव के नाम सुने हैं? ये भी पूछ ले आप। सब लोग सुने हैं ना व्यासदेव जी के नाम? यस। तो जो आप व्यासदेव जी को सम्मान करते हैं, वही व्यासदेव जी चैतन्य महाप्रभु की लीला क्या बन के आए? वृंदावन दास ठाकुर। आप सब पढ़े होंगे भागवतम के प्रथम स्कंद में, चौथे अध्याय, पांचवें अध्याय, छठे अध्याय, व्यासदेव जी कैसे अपने गुरु नारद मुनि से कृपा प्रलाप किए इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करने के लिए। तो उसी प्रकार वृंदावन दास ठाकुर भी कृपा लाभ किए चैतन्य महाप्रभु से और नित्यानंद प्रभु से। When Lord Chaitanya, who is Yugavatara, propagated this Krishna consciousness, he chose a special place known as Sivas Angan। Where? Sivas Angan, Sivas ठाकुर के घर। तो श्रीवास ठाकुर एक गृहस्थ थे, उनके पत्नी मालिनी देवी, घर में और 3-4 भाई भी हैं। उनके घर में काम करने वाले लोग बहुत है, एक टेलर है, एक मेड सर्वेंट है जो पानी लेकर आती है, और पशु पक्षी है। ये श्रीवास ठाकुर के परिवार का वर्णन होता है। और श्रीवास ठाकुर अपने सब कुछ निछावर कर दिए थे महाप्रभु की सेवा के लिए। Every penny he used to utilize in Lord Chaitanya's service. That's why Srivas Thakur is very dear to Lord Chaitanya. और महाप्रभु इनके घर को चुने थे किस लिए? संकीर्तन के लिए, नाम प्रवर्तन के लिए। तो इस श्रीवास ठाकुर के there was a niece of Srivas Thakur. Her name is Narayani. श्रीवास ठाकुर के भाई के बच्चे, इसको niece, और हिंदी में क्या बोलते हैं? भतीजी है, is it? भतीजी बोलते हैं, या
तो नारायणी देवी, ये नारायणी देवी जब महाप्रभु आते थे तो छोटी सी बालिका थी और महाप्रभु की विशेष स्नेह लाभ करते थे। महाप्रभु विल कम एंड महाप्रभु विल गिव हिज उच्चिष्ट रेवरेंस टू नारायणी देवी। नारायण वॉज स्मॉल गर्ल और महाप्रभु के जो चरण के नाखून को चूसते थे। छोटा बच्चा है ना, जैसे भगवान अंगूठे चूसते हैं, तो नारायण देवी भी क्या करते थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु के अंगूठे चूसते थे। दैट मीन्स लॉर्ड चैतन्य इज प्रिपेयरिंग हिम फॉर ए ग्रेट सर्विस फॉर द मिशन। तो महाप्रभु नारायण देवी को एक विशेष कार्य हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं। ही इज मेकिंग द बैकग्राउंड। तो परवर्ती समय नारायण देवी विवाह करते हैं और विवाह के कुछ दिन बाद उनके पति की वियोग हो जाता है, लेकिन तब तक नारायण देवी के गर्भ में श्री वृंदावन दास ठाकुर आ जाते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर, हाउ ग्लोरियस! It's not possible to write Lord Chaitanya's glories, and Vrindavan Das Thakur is glorifying Lord Chaitanya. Why is it? How is it possible? Because he received Lord Nityananda's mercy. वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के अंतिम शिष्य हैं और इनके कृपा भाजन रहे, इसलिए ये महान ग्रंथ की रचना कर रहे हैं जिसका नाम है चैतन्य मंगल था पहले। परवर्ती समय इसका नाम बदलकर चैतन्य भागवत किया गया। तो इसलिए ये जो वृंदावन दास जी के प्रसंग से वास्तविक उनके नाम से, उनके दिव्य उपदेशों से, उनके जीवन चरित्र से वास्तविक हमें भक्ति के लिए बहुत प्रेरणादायी होगी। वृंदावन दास ठाकुर की चरित्र, एक वैष्णव के नाम सुनने मात्र से हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होता है। यह आचार्य की निर्देश कथन है कि आचार्य कहते हैं कोई वैष्णव के नाम सुनने मात्र से, वैष्णव के स्मरण मात्र से हृदय में कृष्ण प्रेम संचारित होता है। सो मच पोटेंसी वैष्णव कैरीज। तो आज हम बार बार वृंदावन दास जी को स्मरण कर रहे हैं बिकॉज पोटेंसी इज हिडन, विल बी रिसीविंग द मर्सी एक्चुअली। तो वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र का रचना करते हैं और इस ग्रंथ का नाम देते हैं चैतन्य मंगल। तो एक प्यार में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, मनुष्य रचित नारे ऐसे दिव्य ग्रंथ। चैतन्य भागवत जैसे ग्रंथ मनुष्य द्वारा संभव नहीं है लिखना। सॉरी, this glorification is doing by Krishnadas Kaviraj Goswami. Krishnadas Kaviraj Goswami has so much respect for Vrindavan Das. He is saying कि मनुष्य रचित नारे ऐसे ग्रंथ, ऐसे दिव्य ग्रंथ। It's humanly impossible to write such a great literatures. वृंदावना दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। How Vrindavan Das Thakur able to write such a great science? Vrindavan Das Thakur is not writing. भौतिक जगत में बोले ये थोड़ा कंफ्यूजिंग बात है। प्रभु जी आप बोले वो लिखे, पूर्व लिखे नहीं। How is it possible? ये अचिंत्य है, लिखे नहीं फिर लिखे। वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। तो भक्ति में यही विज्ञान को समझना चाहिए कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, भौतिक जगत चल मैं बोल रहा हूं, लेकिन आध्यात्मिक परिभाषा क्या है? कृष्ण बुलाते हैं, कृष्ण इज द स्पीकर। दिस इज ग्रेट साइंस टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। हम जगत में कुछ बोलते हैं, क्रेडिट लेते हैं, मैं बोल दिया, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान अलग कार्य करता है। यही इसमें सीक्रेट है एक्चुअली। नाउ क्वेश्चन कम्स, वी आर चैंटिंग और समवन एल्स इज चैंटिंग। हम नाम जब करते हैं और कोई करते हैं हमारे लिए, इसी प्यार के संबंध है। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर हर जो प्यार है
ये नाम प्रवर्तन के लिए है। वृंदावन दास ठाकुर इतने बड़े ग्रंथ लिखने के बाद उनकी ह्यूमिलिटी है क्या कि मनुष्य रचिते नारे, द ह्यूमिलिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कि मनुष्य रचिते नारे ऐसे दिव्य ग्रंथ वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। हाँ, तो ये प्यार में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू राइट सच ए ग्रेट लिटरेचर्स। हाउ इज इट पॉसिबल एक्चुअली? क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर मुखारविंद में कौन बैठे थे? चैतन्य महाप्रभु बैठे थे, वही लिख रहे थे। तो इसलिए ये जो सूक्ष्म बात है, वन लेवल प्लेटफॉर्म, वन डायमेंशन में समझ नहीं आएगा, ट्रांसलेंटल प्लेटफॉर्म। चलिए, भौतिक संसार में हर कोई चाहता है क्या बनने के लिए? कर्ता बनने के लिए, मैंने किया, क्रेडिट लेना चाहते हैं। लेकिन जो वैष्णव गण ऐसे होते हैं कि मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, चैतन्य महाप्रभु आदेश दिए, मैंने किया, मैंने प्रयास किया और कार्य संपन्न हुआ। तो श्रील प्रभुपाद जब इन दिव्य ग्रंथों को रचना कर रहे थे, so Prabhupada has given so many literatures, Vedic literatures. प्रभुपाद के जो ग्रंथ है आने वाले 10,000 वर्ष तक कृष्ण भावनामृत आंदोलन का और प्रचार करेगा और लोगों तक पहुंचाएगा। अगर किसी के जीवन में कोई परिवर्तन आया है या भक्ति युग में जुड़े हैं, केवल प्रभुपाद के ग्रंथ या प्रभुपाद के संसर्ग में आते हैं आकर, तो आज भी ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार असल में कौन कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं, या प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से हो रहा है। प्रभुपाद एक स्थान पे लिखते हैं कि दिस मूवमेंट इज रनिंग अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ रूप एंड सनातन। ISKCON is a branch of Sri Rupa Sanatana Sakha of Lord Chaitanya Street, and this movement is running under the direct supervision of Rupa Sanatana. तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सदा हमारे जीवन में हैं, इस आंदोलन के साथ साथ हमें भी आगे चला रहे हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जब दिव्य साहित्य रचना कर रहे थे, प्रभुपाद इज एन एम्पावर्ड आचार्य। तो प्रभुपाद के एम्पावरमेंट क्या था कि जिस प्रकार व्यासदेव जी वेदों को संकलन किए और उसके सार भागवतम प्रस्तुत किए, उसी प्रकार प्रभुपाद के पास विशेष शक्ति था, ये सत्यावेश अवतार। तो व्यासदेव जी 5000 वर्ष पूर्व हमें भागवतम प्रदान किए, चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व इस भक्ति योग विज्ञान को अपने शिष्यों श्रील रूप गोस्वामी के माध्यम से प्रस्तुत किए। तो समय क्रम में इस सृष्टि पर लोगों की चेतना के स्तर बहुत डिग्रेड होने जाता है। इसलिए एक आचार्य आते हैं, इन ग्रंथों की सरल शब्दों में प्रस्तुत करते हैं कि सामान्य जन समझ पाए भक्ति क्या है। तो श्रील प्रभुपाद यही वैदिक सिद्धांत, वैदिक सार, धर्म के उपदेशों को और सरल शब्द में रचना किए ताकि सामान्य जन समझ पाए भक्ति योग होता कैसा है। तो इसलिए प्रभुपाद इज एन एम्पावर्ड आचार्य टू राइट वैदिक साइंस इन ए सिंप्लीफाइड फॉर्म सो एज ए कॉमन मैन कैन अंडरस्टैंड। इसलिए आप सब जो भक्ति योग में जुड़े हैं, हम सब जो जुड़े हैं, वास्तविक प्रभुपाद के ग्रंथ, प्रभुपाद की जो कृपा हम पर चल रहा है, इस कारण से हम कर पा रहे हैं। And this literature has been tremendous revolution in the life of many across the globe. ये जो ग्रंथ है अनेकों के जीवन में आंदोलन लाया है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं तदभाग विसर्ग जनताग विप्लव। ये जो वैदिक साहित्य है, वैदिक उपदेश है, लोगों के जीवन में आंदोलन लाएगा। कैसे आंदोलन आया? आप सब कपड़ा उतार दिए और कुछ कपड़ा पहन लिए, isn't it? कुछ लोग बाल भी उड़ा दिए, हाँ, कुछ लोग माला पकड़ लिए, कुछ लोग श्रवण प्रक्रिया में बैठ गए, कुछ लोग जो दुखी थे दिव्य आनंद की अनुभूति करने लगे। स्वतः भले कोई समझ भी पाए नहीं समझ पाए,
लेकिन दिव्यता की अनुभूति करने लगे। धीरे धीरे इस आंदोलन के प्रति जुड़ाव, लगाव बढ़ता गया। एक्चुअली ऐसे कार्य करता, रिवोल्यूशन लाता है। जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन होता था, और क्या क्या होता है, अनेक प्रकार के, जर्मन में, फ्रेंच में रिवोल्यूशन हुआ था मानव समाज में बदलाव लाने के लिए। तो वो बदलाव तो खाली इंडस्ट्री बदलाव है, हाँ? लेकिन ये असली बदलाव लोगों के लाए रिवोल्यूशंस। ये जो श्लोक है प्रथम स्कंद 5वें अध्याय के 11वें श्लोक, तद्वाग विसर्ग जनताग विप्लव, हाँ, जस्मिन प्रतिश्लोक का अवधाप्यते अपि। हाँ, तो एक एक श्लोक इतने महत्वपूर्ण हैं। आप अगर जीवन भर ज्यादा भी भागवतम नहीं पढ़े, एक श्लोक को बढ़िया से समझ लिए, भक्ति के सब कुछ समझ लिए। एक्चुअली एक श्लोक काफी होता है जीने के लिए। तो दिस ब्रिंग रिवोल्यूशन इन द लाइफ ऑफ पीपल, बदलाव लाया। तो इसलिए प्रभुपाद जो पुस्तक जब लिखते थे, रात रात भर जग कर, प्रभुपाद के शेड्यूल था, रात के 10 बजे उठेंगे, 10 बजे सोएंगे, 1 बजे जगेंगे, और 1 से 4 प्रभुपाद प्रतिदिन क्या करते थे, इन ग्रंथों की रचना की। जितने पुस्तक आज पढ़ रहे हैं और जो पुस्तक हमें भक्ति में प्रेरणा दे रहा है। तो अनेक बार शिष्य लोग प्रभुपाद से पूछते थे। प्रभुपाद प्रारंभिक समय हाथ से लिखते थे, फिर टाइपराइटर की प्रयोग किए, और उसके बाद प्रभुपाद को शिष्य लोग आसान करने के लिए एक डिक्टाफोन दिए, डिक्टा मशीन। डिक्टाफोन की कार्य क्या है कि रिकॉर्ड कर लेगा, बातों को रिकॉर्ड कर लेगा। तो एक बार श्रील प्रभुपाद अपने अनुवाद कार्य को शुरू करते हैं रात्रि के समय। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया, और अगले दिन शिष्य लोग पूछे, प्रभुपाद आज कुछ है नहीं ट्रांसक्राइब करने के लिए, डिक्टाफोन तो खाली पड़ा है। तो प्रभुपाद बड़ी मधुर बात बोले, मैं वेट कर रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं, कृष्ण कोई शब्द ही नहीं दे रहे हैं। आई एम वेटिंग कृष्ण टू गिव सम ट्रांसलेटेबल वर्ड्स टू स्पीक थ्रू, राइट थ्रू, बट कृष्ण इज नॉट गिविंग एनीथिंग। संसार में लोग सोचता है मैं लिख रहा हूं ना, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि कृष्ण स्वयं लिखा रहे हैं, स्वयं लिख रहे हैं, लिखा नहीं रहे, लिख रहे हैं कृष्ण। ये बहुत बड़ा साइंस जो हम इस प्यार में चर्चा कर रहे हैं कि मनुष्य रचिते नारे ऐसे दिव्य ग्रंथ, हाँ, वृंदावन दासों मुखे भक्ता श्री चैतन्य। तो भक्ति, डोंट टेक एनी क्रेडिट, डोंट बिकम ए डूअर, जस्ट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट। नष्टमोह स्मृति लब्ध तत्प्रसाद में अच्युत करिष्ये वचन तब। तो अर्जुन को भगवान कई प्रकार से समझा रहे हैं, और अर्जुन विचलित होते हैं, और जो अर्जुन की मोह भंग हो गया, भगवान के चरण में पूर्णतः समर्पित हुए, और उस स्थिति में अर्जुन भगवान को कहते हैं करिष्ये वचन तब, नाउ आई एम रेडी, व्हाट एवर यू से आई एम रेडी टू डू। तो भक्ति कृष्ण भावनामृत में ये मूड अवश्य रखिएगा कि आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, आई एम जस्ट ए डांसिंग पपेट। मैं छोटा सा कठपुतली हूं। कठपुतली देखें, आजकल तो नहीं दिखता है, आप सब जनरेशन हो नया है। पहले कठपुतली के नाच करना नचाते थे, भगवान राम की लीला, कृष्ण की लीला को प्रदर्शित करते थे। तो स्टेज पे 2 डॉल ऐसे नाच रहे होंगे, एक्शन दिखा रहे होंगे, लेकिन पीछे रस्सी लगा रहता है। उसको नचाने वाले 2 लोग होते हैं, रस्सी जैसे खींचेंगे वैसे हाथ पैर उठाएगा। तो भौतिक जगत में भी जीवात्मा ऐसे ही कठपुतली के समान है, भगवान के इशारे पे नाचने वाला है। तो प्रभुपाद कहते हैं ये ग्रंथ मैंने ही नहीं लिखा, कृष्ण स्वयं लिख रहे हैं। तो इसलिए हमारे कर्तव्य है, जो कृष्ण को उपदेश को पहुंचा रहे हैं ऐसे महान भक्त, हम इन कृष्ण के उपदेशों को गंभीरता से ग्रहण करें। तो हमने जो भजन गाया है बहुत सुंदर भजन है, इसका अर्थ थोड़ा चर्चा करेंगे बिफोर वाइंडिंग अप। तो वृंदावन दास ठाकुर, इवन दो he was very small, but still Mahaprabhu mercy is flowing, he can directly have the darshan of Lord Chaitanya। और महाप्रभु की सुंदरता को वर्णन कर रहे हैं, हाउ महाप्रभु सो ब्यूटीफुल। तो महाप्रभु इतने सुंदर है, कैसे सुंदर है, सुंदरता को वर्णन करते हैं कि जानु लंबित बाहु जुगल। हमारे हाथ छोटा छोटा है, लेकिन महापुरुषों का हाथ बहुत लंबे होता है।
कितना लंबा, ना जानो तक आने तक, घुटने तक आ जाएगा। आप खड़े होंगे और हाथ को क्या करेंगे, घुटना तक लाएंगे बिना बेंड हुए। आसन करते समय तो बेंड कर लेते हैं हाथ को, लेकिन आप स्ट्रेट खड़े हैं और प्रयास करेंगे हाथ कहां तक जाएगा, आपका हाथ यहीं तक आएगा मैक्सिमम। लेकिन जो महापुरुष हैं उनके बाहु कितना लंबा है, ना घुटना तक पहुंच, जानो लंबित बाहु जुगला। तो महापुरुषों का 32 लक्षण है, शारीरिक सिम्टम, शरीर के अनुसार उनके 32 लक्षण होता है। तो ये साक्षात भगवान है। तो भगवान ऑल्सो कैरिंग द महापुरुष सिम्टम इन हिज बॉडी। तो विशाल विशाल भुजाएं हैं। महाप्रभु के हाइट कितना था, 7.5 फीट अराउंड। कितना, या टॉल, लाइक टॉलेस्ट। प्रभुपाद जब विदेश गए तो प्रभुपाद के शिष्य लोग ऐसे लंबे लंबे थे, उनको कहा जाता है व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट डांसिंग एलिफेंट्स। लाइक कनकपुतली दया, हाउ इज बॉडी इज कनकपुतली, मल्टिन गोल्ड। सोना पिघलते हुए जैसे लगेगा, महाप्रभु की सुंदरता ऐसा है। और अरुण अंबर शोभित कलेवर, हाउ इज द ब्यूटी ऑफ हिज बॉडी, जैसे आसमान में सूरज चमक रहा है, और आसमान को एक कपड़े के समान उपमा दे रहे हैं, और सूरज उसको और चमका रहा है। प्रातःकालीन सूरज लालिमा होता है, देखें आजकल तो देखते नहीं कोई, सब बंद कमरे में है। आचार्यगण से उपमा देते, भगवान के सुंदरता के लिए चुनते, कोई वस्तु नहीं है किसको उपमा दे। और धीरे धीरे ये सूर्य जब प्रस्फुटित और खिलने लगता है और आलोक आने लगता है, तो पूरे आसमान है और आसमान में सूरज की किरण विच्छुरित है। इसी को उपमा देते हैं कि महाप्रभु जो वस्त्र पहने शरीर है ऐसा ही चमकीला है। और विनम्रता से वृंदावन दास ठाकुर उपमा दे, अब कहा मैं क्या उपमा दूं, भगवान की उपमा में क्या दूं, कोई वस्तु ही नहीं मिल रहा है। जब व्यासदेव जी भी भगवान की सुंदरता को वर्णन करना चाहते हैं, बोले कोई वस्तु नहीं मिल रहा है, इसलिए कमल को चुने। नम पंकज नाभाय कमल, not matching exactly, but something we have to express. Common man, how will understand the beauty? Like Hasa Bimala Bayana Kamala. His smile also very beautiful. Hasa Bimala, mal से रहित है, Hasa Bimala, beautiful smile. और Bayana Kamala, उनके चरण कमल भी चमक रहा है। पीना हृदय साजे, he has a broad chest. जैसे आप लोग जिम जाकर चेस्ट बड़ा करते हैं या वेट लिफ्टिंग करके करते हैं ना, लेकिन महाप्रभु इसको आर्टिफिशियल नहीं करना पड़ता है, स्वतः पीन हृदय साजे। उन्मत गीमा सिंह जनिया, हिज शोल्डर्स, चेस्ट, एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। उदार विग्रह राजे, शरीर भी बड़ी सुंदर है और हृदय भी बड़ी सुंदर है। उदारता, मोस्ट कंपैशनेट, करुणामय अवतार है। महाप्रभु जो चल के जाते थे, पशु पक्षी भी देखकर आकर्षित हो जाते। कृष्ण है, स्वयं अट्रैक्टिव है, और महाप्रभु दृष्टि मात्र से सबको प्रेम दे देते थे। आज प्रभुपाद आल्सो डूइंग लाइक दैट मिराकुलसली। बहुत से भक्त थे, प्रभुपाद को देखते देखते भक्त बने, क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़े। द ब्यूटी ऑफ प्योर डिवोटीज लाइक जस्ट बाय द स्माइल। प्रभुपाद एक तात्पर्य लिखते हैं, द स्माइल ऑफ ए प्योर डिवोटी कैन टच ट्रांसफॉर्म द हार्ट ऑफ मेनी। उदार विग्रह राजे, चरण नाखर ऊजर ससधर। अभी चरणों के नाखून का वर्णन कर रहे हैं, क्या नेल्स, टो नेल्स। हाउ द टो नेल, जैसे चंद्रमा, आधा चंद्रमा जैसे चमकता है। चरण नाखर ऊजर ससधर, ससधर मीन्स चंद्रमा। एक पूर्ण चंद्रमा है, एक आदि चंद्रमा है। तो महाप्रभु के चरण के नाखून कैसा है, ना कि चंद्रमा के समान सुंदर है। मतलब चंद्रमा भी फीका पड़ जाएगा, लेकिन उपमा दे रहे हैं समझाने के लिए। कनय मंजरी सोहे ऑन गोल्डन एंकल बेल्स, उनके पाँव में नुपुर है, कैसा, सोने की नुपुर। हेरी दीन मने आपन निचाए, रूपे जगमन मोहे। इज सो ब्यूटीफुल कि जग में सबको मोहित कर लेते हैं, इसलिए भगवान के नाम मोहन है।
who steals the heart of everyone, मोहित कर लेते हैं। आगे कहते कलयुगेर अवतार चैतन्य निताई पापो पाषंड नहीं माने। दिस द मैग्नानिमिटी और ग्रेट कंपैशन ऑफ लॉर्ड चैतन्य। कलयुग में सब कोई पापी और पाषांडी है। पापी किसे कहते हैं? Who is a sinner, sinful man? कौन है पापी? पापी की क्या परिभाषा है? जो पाप कर्म करते हैं पापी हो गए। पापा पापी, मामा मामी। Who is a पापी? Who is a sinful person? What is the definitions? शास्त्र के विपरीत कार्य करता है। यस, वो डेविएट। और पाषांडी, पाषांडी कौन शब्द है पता नहीं है। पाषांडी को भी महाप्रभु कृपा दी है। पापी और पाषांडी। हम तो कहते असुर लोग पापी थे, जगत पूरा पापियों से भरा है। जीव कैसे पापी बन जाता है? आप बोले जैसे भगवान के निर्देशन के विपरीत चलता है। जन्मना जाए तो शूद्र, एवरीवन इज बॉर्न सिंफुल पर्सन। तो वास्तविक वैदिक अध्ययन करने के लिए भी बहुत योग्यता चाहिए था, ब्राह्मण होना चाहिए था, उच्च कुलीन होना चाहिए था। लेकिन महाप्रभु पात्र अपात्र ना देखे स्थानास्थान सबको दिए, कोई बात विचार नहीं। तो हम लोग यहाँ नहीं बैठते हैं। प्रभु भक्ति करने के लिए भी हाई स्टैंडर्ड चाहिए, जैसे जगन्नाथ मंदिर में है। आप नहीं घुस सकते हैं। आप कौन से जात से हैं? कौन से देश से हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव लाइक, बट दिस इज महाप्रभु's मैग्नानिमिटी। पशु पक्षियों को भी महाप्रभु प्रेम प्रदान किए। दिस इज लॉर्ड ओनली हु हैज नेचुरल लव फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। तो महाप्रभु पाप पाषांडी किसी को नहीं देखे, सबको प्रेम दिए। श्री कृष्ण चैतन्य ठाकुर नित्यानंद वृंदावन दास गुण गाने। ये वृंदावन दास ठाकुर ये गौर नित्यानंद की महिमा गायन करते हैं, और वही महाप्रभु की कृपा से। तो वृंदावन दास ठाकुर की आज आविर्भाव तिथि है, और वृंदावन दास ठाकुर अनेक सुंदर सुंदर भजन, जो महान ग्रंथ है चैतन्य भागवत, नित्यानंद चरितामृत, जैसे अनेक ग्रंथ दिए, जो शब्दों में ही प्रेम छुपा हुआ है। समय क्रम में इन शब्दों से हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे इस पे कैसा प्रेम है, और स्वयं यही श्लोकों से ही अपना प्रेम को अनुभूति कर सकते, भगवत प्रेम को। तो आचार्यगण को महाप्रभु या परम भगवान ऐसी कृपा दिए हैं जो उनके शब्दों में प्रेम है, और जब हम सुनेंगे ये प्रेम हमारे हृदय से स्वतः प्रकट होने लगेगा, प्रेम उदय होने लगेगा। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य ठाकुर नित्यानंद वृंदावन गुण गाने। वृंदावन दास ठाकुर प्रति चैतन्य भागवत की अंतिम श्लोक यही बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चाना जंद जना वृंदावन दास गाने अच्छा पद गुना। कि लॉर्ड चैतन्य नित्यानंद आर माय हार्ट एंड सोल, आई वृंदावन दास ठाकुर ट्राई टू ग्लोरीफाई देम। तो आज वृंदावन दास ठाकुर के शुभ आविर्भाव तिथि है। वैष्णव की आविर्भाव एक शुभ आगमन के समान है। कृष्ण की जैसे जन्माष्टमी है, उसी प्रकार वैष्णव के आविर्भाव भी विशेष दिन होता है, और हमारी यही सेलिब्रेशन है। हो सकता है हम कुछ आज प्रसाद ना माने, प्रसाद बना के सेलिब्रेट ना करें, कुछ गुणगान और तरीके से कुछ बाहरी रूप से कर भी नहीं पाए। तो बेस्ट वे टू सेलिब्रेट वैष्णव's appearance day by hearing about them and praying to the Vaishnava for receiving their mercy in our life. And second, whatever they have shown the path, we have to abide by their footstep. This will take us to perfection. तो वैष्णव के आविर्भाव तिथि पर हम यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे वैष्णवगण, हे श्री वृंदावन दास ठाकुर, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। और कैसे साधु की कृपा हम पर बनेगी कि वो जो सुंदर दिव्य ग्रंथों को, दिव्य उपदेशों को देकर गए, उन्हीं की पदरेणों पर, पद चिन्हों पर हम चल पाए। यही सबसे बेस्ट व्यास पूजा या अपीयरेंस डे सेलिब्रेशन है वृंदावन दास ठाकुर के लिए। So this is what we are praying to Vrindavan Das Thakur. So when we remember this great Vaishnava,
then only by their mercy, what they're giving, we can value, we can keep their instruction in heart and follow in the footstep of this great Vaishnava. श्री वृंदावन दास ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की, श्री वृंदावन दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, हिताय गौर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न है किसी का? एनीथिंग टू आस्क? दिस टाइम ज्यादा हम ले ली। So who is Vrinda? Yes. गवर्नमेंट है, करने के लिए आए हैं, और अगर कोई गवर्नमेंट है को नहीं मानता है तो वो कभी मतलब उसको कृष्ण प्रेम नहीं। No, not at all. It will take many lives. Gaur-Neta is not different than Krishna Balaram. है ना? बहुत सारे दृष्टांत है चैतन्य चरितामृत में। कोई चैतन्य महाप्रभु को मानता था, नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता था। कोई नित्यानंद प्रभु को मानता था, चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानता था। कोई गौर नित्यानंद को मानता था, अद्वैताचार्य को नहीं मानता। अनेक इंस्टांसेस है चैतन्य चरितामृत भागवत में। So they are bereft actually. Such person can be called in the category of passionate actually. जो भगवान को मानेगा सबको मानेगा। We have a quote, I think, in other basis. You love Krishna means you love his creations, love every living beings. ये नहीं मैं उसको प्रेम करूं, उससे नहीं प्रेम करूंगा, भेदभाव नहीं। कृष्ण इज समभाव and भक्त इज also समभाव, पार्शियलिटी नहीं। तो कैसे ये जाएगा अज्ञानता? उन्हीं महाप्रभु की कृपा से जाएगी, दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी, है ना? ओके, यस। नारायणी देवी के हस्बैंड जो उनको डिपार्ट कर जाते हैं आफ्टर मैरिज एंड वृंदावन ठाकुर आ जाते हैं, तो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन से कि भगवान तो उनकी लाइफ में देन व्हाई ही इज फेसिंग समथिंग। So Lord has every activity of Lord is translated. You cannot understand externally. महाप्रभु कैसे थे? उन शिवास ठाकुर के पत्नी को विधवा बनाकर भतीजी को विधवा बना दी, निंदा लेकर भटकती रही, पतिहीन होकर समाज में कलंकित होकर रहेगी। So Lord has different plan actually. We have a plan, we have an understanding in the world, but Lord has a different plan. तो प्रभु जी पूछ रहे हैं कि महाप्रभु तो उनके घर में थे, तो नारायणी देवी को सदा सुहागन बना के रखते, और वो बच्चा आए नहीं, शादी ही किए हैं, उनको अनाथ बना दिए। ऐसे कैसे किया? जैसे नारद मुनि के प्रसंग है। नारद मुनि has two attachments. You know the Narad Muni's pastime. He has very deep attachment to his mother, and Lord taken away mother. What is the outcome? He will more dedicated in services. तो भगवान जो करते हैं अच्छाई के लिए करते हैं। अब नारद मुनि भाई छोटा बालक थे, उनके माँ को छीन लिया, उनसे अनाथ हो गए। ये माँ तो सहारा था, नहीं मेरा सहारा पूर्ण स्वीकार करेगा, और किसी को सहारा मानेगा तो मेरे को सहारा नहीं मानेगा। लॉर्ड हैज ए मल्टीपल प्लान, बेटर प्लान। ठीक है, यस। You said that service can be done in number of ways, yeah, but not out of speculations. जैसे आपको प्रोग्रामिंग की कोडिंग दी जाती है, डिफरेंट वे में कर सकते हैं। हाँ, या फर्दर क्वेश्चन को फॉरवर्ड। We want to do a specific seva that gets us the most limelight. हाँ? That gets us the most limelight, the most credit. Limelight, because we think we have our own conceptions. I think I can do the thing my way, the best way. But actually, who is the doer? Krishna is the doer. Even though we plan, our plan won't successful because Krishna has different plan. When we accept Krishna's plan, we become happy. When we attach to our plan, we get frustrated actually. है ना? जब हम अपना योजना के अनुसार चलते हैं और होता नहीं, क्यों? भगवान की बेहतर योजना है। ये तो परिवार में लड़ाई होता है, संस्था में लड़ाई होता है, किस लिए? मैंने इतना बढ़िया सुझाव दिया, कोई स्वीकार ही नहीं किए। मतलब वो माहौल तक वो सीमित है उसके विचार, नहीं,
परम भगवान संस्था चला रहे हैं, तू नहीं चला रहा है। लेकिन तू क्या सोचता, मैं संस्था चला रहा हूँ, मैं भी डिसीजन ले रहा हूँ, और मेरी आइडिया को सम्मान ही नहीं किए। From my side, I should not be attached. From institutional side, they should respect my idea, may not be finally approving. So Krishna is Upadeshta Anumanta. He is the approving authority. तो जो सेवा निर्णय होता है, so we are in a community of Vaishnavas, devotees like, and Krishna is giving intelligence to everyone. जैसे आप देखो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, चंद्रावली एंड श्रीमती राधा रानी, विशाखा सखी, ललिता सखी, everyone is rendering service. And what is the mood? How I can serve better. वो लोग लड़ते नहीं है, ललिता ये फूल माला नहीं लेके जाना है, मैं जो बनाए वही जाएगा. They fight like that. नहीं, ऐसे नहीं. You glorify, जो you have so nice, beautiful thing done. So there is a cooperation in services. Everyone helping other to better serve life. इन भौतिक जगत में प्रतिस्पर्धा होता है, मेरा आइडिया सबसे बेस्ट है. दिस इज अ फाइट गोज ऑन इन मटेरियल वर्ल्ड, इन ऑफिसेस, इन कॉलेजेस, इन हॉस्टल्स. ये प्रॉब्लम है एक्चुअली. बट व्हाट इज वैष्णविज्म? द वैष्णव रिस्पेक्ट्स अदर्स. ये श्रीमती राधा रानी की मूड है. यू नो व्हाट इज मूड ऑफ राधा रानी? राधा रानी जो कृष्ण से इंट्रोड्यूस करती है जीवों को, क्या कहती है? You know Krishna, he is better than me, he serves better than me. लेकिन ये जगत में क्या, मैं अपने आप को बेस्ट मानता हूँ. ये मूड देना पड़ता है, भाई काम होगा नहीं, आई एम द बेस्ट. जैसे टेनिस प्लेयर जीतने बाद, आई डिड इट, है ना, आई एम डूअर, आई डिड इट, नो कृष्ण, नॉट वन है देयर, आई एम अ डेमन, आई डिड इट. बट इमीडिएटली डिवोटी हार्ट गोज टू कृष्ण, कृष्ण डिड इट एक्चुअली, आई पास ऑन द क्रेडिट. This is the difference between spiritual world and material world. Spiritual mood, material mood. This mood transformation is needed. हम वही स्थिति में रहेंगे, लेकिन कॉन्शियस अपलिफ्ट होना चाहिए, कॉन्शियस ट्रांसफॉर्म होना चाहिए. तो ये जगत में रहते हुए मैं आध्यात्मिक जगत की अनुभूति करने लगेंगे, परिवर्तन से, चेतना प्रगति से. जैसे कोई आप जीपीएस लगाते हैं ना, जीपीएस लगाते हैं नहीं, कभी गलती से आगे बढ़ गए, और भी रास्ता है कि नहीं, isn't it? कहीं पीछे से भी गलती से घुस गए, और भी रास्ता है, पहुंचा देगा, है ना. Likewise, the service can be rendered in n number of ways. But ultimately, what is our mood should be how Krishna plans to work to be done. कृष्ण कैसे चाहते हैं. मैं भी आइडिया दिया, उसने भी दिया, लेकिन अल्टीमेटली वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है. If you will accept this, the supremacy of Lord, many things will be resolved. भौतिक जगत की लड़ाई can be resolved by accepting Krishna's supremacy. Krishna is the supreme personality of God. ये खाली बोलने के लिए नहीं, ये शब्दों में बहुत गुह्य तत्व है, खाली इतना बोलने से नहीं चलता है. भक्ति में एक एक टर्म की बहुत गाढ़ापन है जो धीरे धीरे अनकवर होता है. हम लोग तो शब्द तक सीमित है, शरणागत हो गए, कहानी खत्म हो गई, शरणागत खत्म हो गया. आज शरणागत हम लोग जगह से पढ़ लिए, हम जगह से सीख लिए, शरणागत हो गया नहीं. तो शरणागत जीना है. एवरी डे, एवरी मोमेंट यू हैव टू सरेंडर, लाइक द वे कृष्ण वांट्स, कृष्ण प्लान्स, कृष्ण विल्स, है ना. तो शरणागत किताब खत्म, शरणागत लेक्चर भी खत्म, भक्ति भी खत्म. नहीं, जीना है, आस्वादन करना है, बढ़ाना है ना. तो भक्ति कोई जटिल नहीं है, लेकिन हम अपने सांसारिक धारणा, स्कूल को भक्ति में डाल देते हैं. किताब खत्म, वो किताब खत्म, ये लेक्चर खत्म, भक्ति भी so don't do like that. भक्ति जीना है, अभ्यास करना है, गाढ़ापन आएगा. ओके, ये प्रो हम ये कब कंसिडर कर सकते हैं, जैसे हम मतलब अपने प्लान बनाते रहते हैं, तो कभी-कभी हम युक्ति लगा के, शास्त्रीय युक्ति लगा देते हैं कि नहीं, ये भगवान का ही प्लान है. मैंने थोड़ा गुलाब जामुन खाने की इच्छा, तो भगवान का प्लान है. आज गुलाब जामुन आया है, मन भी क्या था, अग्रवाल स्वीट्स में घुसा, ये तो भगवान के प्लान है.
भगवान की प्लान था कि माया के ट्रिक था। मैं कॉलेज में जा रहा था, वो लड़की प्रेम किया, ये तो भगवान की योजना है। मैं थोड़ी कुछ किया था, वो तो आके प्रपोज किया। तो भगवान की योजना स्वीकार कर लेना। It can be Maya's trick also, because she won't see the other side. Both sides the devotee sees, like he prays, I don't understand, Lord. Is it your will or is Maya's